Welcome students in biology class. In previous video we described about the flower, parts of flower, male reproductive systems means we describe about the male gametophyte, female gametophyte as well as pollination. ठीक है, ये जो डिफरेंट टॉपिक थे we are discussed in previous video. Today we discuss the very important topic, that is the pollen pistil interaction. This is the very important topic. Why? Because without the pollen pistil interaction there is no formation of seeds, there is no formation of fruits. Okay, so clear why we are choose the pollen pistil interaction? This is the essential topic for the formation of food, just like fruits as well as the vegetables, fruits, seeds. Okay, without pollen pistil interaction there is no formation of seeds or fruits. So what is the pollen pistil interaction? है क्या ये? The events from the deposition of pollen on the stigma till the entry of pollen tube into the ovules are collectively called pollen pistil interaction. ठीक है, तो pollen pistil interaction, this is the one events in which pollen grain they are deposited on the stigma region, then germinate means entry through the pollen tube. ठीक, pollen tube द्वारा एंट्री करता है which part style and they goes into the ovules. जो ये whole process that is known as the pollen pistil interaction. That is clear. It is an essential steps in the fertilization of angiosperm and determines compatibilities and incompatibility of pollen and pistil. ठीक है, ये इसेंशियल स्टेप भी है फर्टिलाइजेशन के लिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, जो डिटरमाइन करता है कि कैपेबल है या इनकैपेबल pollen ग्रेन है. It is a dynamic process which has checks at several places for promotion or inhibition of pollen growth. Okay, so this is the dynamic process है pollen pistil interaction. There is the dynamic process. Why that is dynamic? Because it check at several places पे चेक किया जाता है for the promotion or inhibition of pollen growth. pollen growth को इनहिबिट कर रहा है या ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, ये चेक करता है, मीन्स इंडिकेट करता है कि दिस द कैपेबल और नॉन कैपेबल. Knowledge of pollen pistil interaction is helpful to plant breeders in manipulating pollen growth even in pollen pistil इनकम्पेटेबल केसेस. ठीक है, यदि नॉलेज है pollen pistil इंट्रैक्शन का, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल फॉर द प्लांट ब्रीडर, जो प्लांट में ब्रीडिंग कराते हैं उसके थ्रू वो कौन सा कंपेटेबल है कौन नहीं है इसको वो इजीली सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, इसके बेस पर आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करना है, pollen germination ऑन ए स्लाइड. Clear? Okay. In pollen pistil interaction there are some process that is occur inside them. First one is the recognition of compatible pollens. ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ कंपेटेबल पॉलेंस क्या होता है?
The pistil has the ability to recognize and accept the right means compatible pollen of the same species and to reject the pollen grain that are incompatible either of the same species or of the other species. ठीक है, तो पिस्टिल इज द एबिलिटी, पिस्टिल के बाद एबिलिटी होते हैं रिकोगनाइज करने की पॉलन ग्रेन को कि वो कंपेटेबल है, सुटेबल है जर्मिनेशन के लिए और नॉट। यदि सेम स्पीसीज का है तो भी या अदर स्पीसीज, सेम स्पीसीज का भी है तो भी वो जर्मिनेट क्यों नहीं करता, बिकॉज यू नो अबाउट देम इन प्रीवियस स्लाइड वी डिस्कस देयर टू टर्म प्रोटेंड्रस और गाइनेंड्रस, ठीक, या प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्रस, जिसमें मेल पहले मैच्योर हो जाए फीमेल बाद में, या फीमेल पहले मैच्योर हो जाता है मेल बाद में। तो इस कंडीशन में भी ये क्या करता है, स्टिग्मा उसको इनकैपेबल कंडीशन में उसको रखता है, रोक के रखता है। दैट इज क्लियर। It is the result of continuous dialogue mediated by the chemical components of pollen interacting with those of the pistil. पिस्टिल और पॉलन के बीच में हमेशा डायलॉग, एक तरह कंटिन्यूस डायलॉग ट्रांसफ़र होता है। यदि सिमिलर स्पीसीज है, सिमिलर स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है तो दैट इज रिलीज द केमिकल्स। ओके, after recognition of this correct pollen, pistil promotes post fertilization event that leads to the fertilization। यदि सेम स्पीसीज का है, राइट टाइम का है, तो जो स्टिग्मा है नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करने देता है, मीन्स दैट इज द पोस्ट पॉलिनेशन, मीन्स दैट इज द अलाउ फॉर द जर्मिनेशन इनसाइड द styles। Okay, so first that is the recognition of compatible pollens। कौन करता है ये, स्टिग्मा करता है। सेकेंड वन, ग्रोथ ऑफ ए pollen tube। The pollen grain reaches the receptive stigma of the carpel by the act of pollination। ठीक है, स्टिग्मा रीजन पर pollen grain किसके थ्रू पहुंचता है, pollination के थ्रू प्रोसेस। Pollen grain after getting attached to the stigma absorb water and swell। जब वो स्टिग्मा रीजन पर प्रेजेंट होता है तो दैट इज absorb water from the stigma and they are swell। After compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore। ठीक है, यदि compatible है मीन्स सिमिलर स्पीसीज का pollen grain है, देन प्रोड्यूस द पॉलन ट्यूब, मीन्स पॉलन जर्मिनेट करता है, ट्यूब का फॉर्मेशन करता है पॉलन ट्यूब का। और कहाँ से ओरिजिन होता है, यू नो अबाउट देम। इन केस ऑफ पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात की है तो वहाँ पे एक पोर होता है जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है, तो उस जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन देन मूव इनटू दिस ट्यूब। इसके बाद यह पॉलन ग्रेन का जो ट्यूब है वो मूव करता है किसमें, स्टाइल रीजन में। दैट इज क्लियर। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल बाय सीक्रेटिंग द एंजाइम दैट डाइजेस्ट देम। स्टिग्मा से जब ये इंटर करता है ग्रोथ करके, दैट इज गोज इनसाइड द स्टाइल रीजन, दैट इज द सम एंजाइम आर सीक्रेटेड फ्रॉम द पिस्टिल which are digest them, means that is provide the nourishes for the pollen grain। In some plant that shed pollen at the two celled conditions, means that is generative and vegetative cell। In this condition the generative cell divides and form two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma। ठीक है, तो इन प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि 40% जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो टू सेल्ड स्टेज में ही आपके पॉलिनेशन हो जाता है, जिसमें एक पार्ट होता है जनरेटिव सेल, दूसरा वेजिटेटिव सेल। जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो जो जनरेटिव सेल है डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स बनाता है और एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट रहते हैं।
means that is three celled stage that is enter inside the ovules. That is clear. एंड मैक्स आपका 60% प्लांट में आपके थ्री सेल स्टेज होते हैं, मतलब 2 मेल गैमेट्स पहले से ही बने होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होता है. क्लियर हुआ ये? ओके. Pollen pistil interaction is the safety measures to ensure that illegitimate क्रॉसिंग डू नॉट अकर्स. मीन्स वो सेम स्पीसीज का इसमें होता है तभी वो ग्रोथ करता है, अदरवाइज ग्रोथ नहीं करता. पॉलन ग्रेन्स ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स में सेटल ओवर स्टिग्मा. ओनली द राइट पॉलन ग्रेन बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज वुड जर्मिनेट वाइल अदर फेल टू डू सो. ठीक है, पॉलन ग्रेन मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होते हैं ऑन द स्टिग्मा रीजन. सेम स्पीसीज के भी होते हैं, अदर स्पीसीज के भी होते हैं, लेकिन ओनली द राइट पॉलन ग्रेन जो सेम स्पीसीज को बिलोंग करता है दैट इज ओनली जर्मिनेट. कंपेटिबिलिटी एंड इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द पॉलन पिस्टिल इज डिटरमाइंड बाय द स्पेशल प्रोटीन्स. इसमें स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, वो डिटरमाइन करता है. The compatible pollen are able to absorb water and nutrient from the surface of stigma. जो compatible pollen grain है मतलब सेम स्पीसीज का है, वो वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब्स. और उसके बाद वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है. विच पॉलन ट्यूब दैट कंटेन द 2 मेल गैमेट्स एंड वेजिटेटिव सेल्स. क्लियर? ओके, यू सी हियर. You see here your diagram. There is the pollen grains are present. Some that is germinate, but they cannot enter inside the style region. लेकिन here pollen grain that is germinate that is goes inside the style region. Means this is the compatible pollen grains. Clear हो गया ये? थर्ड स्टेज है entry of pollen tube into the ovules. So after reaching the ovary, the pollen tube can enter the ovule either through the micropylar end or through chalaza or through funicles or integuments. ठीक है, जब pollen tube इंटर करता है ओवरी रीजन में तो ये 3 प्रोसेस के थ्रू इंटर करता है. वन इज द माइक्रोपाइलर, जिधर माइक्रोपाइलर रीजन होता है उधर से एंट्री करता है तो उसको माइक्रोपाइलर कहते हैं. दिस इज कॉमनली नोन एज द पोरोगैमी. आ थ्रू द चालजा, चालजा रीजन से इंटर करता है तो उसको चैलेजोगैमी बोलते हैं. आ थ्रू फ्यूनिकल्स आर इंटिगमेंट्स, या ये वो फ्यूनिकल या इंटिगमेंट के थ्रू इंटर करता है तो उसको हम मीजोगैमी कहते हैं. तो दे आर 3 प्रोसेस फॉर एंट्री ऑफ pollen grain into the ovules. Clear? It then enter one of the synergid through the filiform apparatus present at the micropylar ends. ये जो इंटर करता है माइक्रोपाइलर रीजन से, उसके नीचे जस्ट बेलो दैट इज द फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट होता है synergids के, which that is provide the entry of pollen grain. The filiform apparatus direct the growth of pollen tube by secreting some chemical substances. जो filiform apparatus है डायरेक्ट ग्रोथ करने के लिए प्रोवाइड कराता है pollen grain को, because that is secretes some chemicals which enter into the embryo sac. Clear? All these events mentioned above together to refer to as the pollen pistil interaction. You see थ्रू द डायग्राम्स. ये आपको दिख रहा है डायग्राम. ठीक है, पॉलन ग्रेन ये है, जर्मिनेट किया हुआ है, दैट इज गोज इनसाइड देम. जब इंटर करता है तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, 1 वेजिटेटिव सेल होते हैं. ये इंटर करता है, यहाँ पर फिलीफॉर्म apparatus होता है जिसके थ्रू केमिकल रिलीज होता है जो डायरेक्टली इंटर में प्रोवाइड करता है. ये आपका माइक्रोपाइलर रीजन्स हैं.
ओके, द एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन टू द ओव्यूल्स क्लियर हो गया थ्रू द पोरोगेमी मीन्स इफ द pollen grain enter in ovules through the micropylar ends, so this is known as the porogamy. If that is enter through the chalaza regions, ovules में स्ट्रक्चर याद है, चैलेजा रीजन कौन सा होता है, यदि उसके थ्रू इंटर करता है तो उसको चैलेजोगमी कहते हैं. इफ दे आर इंटर थ्रू द फ्यूनिकल्स आर इंटेगमेंट्स, यदि वो डायरेक्टली इंटेगमेंट्स या फ्यूनिकल के थ्रू इंटर करता है तो उसको हम मीजोगैमी कहते हैं. दैट इज क्लियर. ओके, यू सी द स्ट्रक्चर हियर. पोरोगैमी ये माइक्रोपाइलर एंड्स है, ठीक है. माइक्रोपाइल के थ्रू यदि पोलन ग्रेन ट्यूब इंटर कर रहा है ओव्यूल्स में, सो दिस नोन एज द पोरोगैमी. हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा डायग्राम से. सेकेंड है चैलिजोगैमी. चैलेजा रीजन ये है ओव्यूल्स का. यदि डायरेक्टली पोलन ग्रेन इंटर करे चैलेजा रीजन से, ठीक है, सो दिस नोन एज द चैलेजोगैमी. और थर्ड है दैट इज इंटर थ्रू द फ्यूनिकल रीजन. फ्यूनिकल रीजन ये है आपका, या थ्रू द इंटेगमेंट्स. ये इंटेगमेंट्स आउटर लेयर इंटेगमेंट्स होता है, ठीक है. फ्यूनिकल या इंटेगमेंट के थ्रू इंटर करता है इनसाइड द ओव्यूल्स, सो दिस नोन एज द मेसोगैमी. क्लियर हो गया ये सभी प्रोसेस. ओके, तो हाउ कैन द पोलन ग्रेन एंटर इनसाइड द ओव्यूल्स? I hope that all of it clear. Next process, before we discuss about the artificial hybridizations, we discuss the some significance of pollination. Significance of pollination क्या है? Pollination is the means of taking the male gametophyte for its growth near the female gametophytes. ठीक है. सेकेंड सिग्निफिकेंस है pollen pistil interaction determine the suitability of pollen for carrying out the process of sexual reproduction. थर्ड है it has freed the seeds plant from the dependence on external water during fertilizations. And last one, it can be manipulated to produce pure line as well as the desired variety. ठीक है, इसके थ्रू हम ऑप्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट आइए आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज़ द क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफन जनरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज. ठीक है, इसमें दो स्पीसीज के बीच क्रॉसिंग करा करके सुपीरियर वेराइटी की स्पीसीज को हम ग्रोथ कराते हैं. सो दिस नोन एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. It has been used by the plant breeders for crop improvement program. जो प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं क्रॉप को इम्प्रूव कराने के लिए, वो इसका मैक्सिमम यूज़ करते हैं फॉर द इंक्रीज द गुड वैरायटी ऑफ स्पीसीज. दैट इज क्लियर. इट इज अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, या डिफरेंट मेथड के थ्रू ऑप्टेन करते हैं. ठीक, दो मेथड है. First one is the emasculation. Everyone know about the emasculation. The anther is removed from the bud before it dehiscence using a pair of forceps. ठीक, एंथर का डेहिसेंस होने से पहले फोर्स रेप के थ्रू उसको रिमूव कर देना फ्लावर से. दिस इज नोन एज द emasculation. It is mainly done when the female plant bear bisexual flower. और किसमें किया जाता है? जब प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड अ फ्लावर. तो उसमें हम एंथर को बिफोर डेसेंस होने से पहले उसको हम रिमूव कर देते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज द emasculation. सेकेंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्रोसेस है आपका बैगिंग. बैगिंग क्या है? द emasculated फ्लावर इज कवर्ड बाई अ बैग. जो emasculated फ्लावर कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, उसको हम
बैग से कवर्ड कर देते हैं। आप सुटेबल साइज जनरली मेड ऑफ द बटर पेपर, और यह नॉर्मली बटर पेपर का बनता है या पॉलिथीन से भी यूज़ किया जाता है। सो एज टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा बाय अनवांटेड पॉलन ग्रेन। ठीक है, जब उसको हम स्टिग्मा को कवर कर देंगे तो अनवांटेड पॉलन ग्रेन उस पर फॉल डाउन नहीं होगा और उसके द्वारा कंटेमिनेशन नहीं होगा। मीन्स वी प्रिवेंट द कंटेमिनेशंस। दैट इज क्लियर। When the stigma of the bag flower becomes receptive, the collected pollen grains are dusted on the stigma. जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो उसके सरफेस पर जो कलेक्टेड पॉलन ग्रेन है, जो आपका इंक्रीज करने के लिए आप क्रॉप यूज़ कर रहे हैं, उसके पॉलन ग्रेन को ला करके इसके सरफेस पर स्टिग्मा पर छिड़क देते हैं। ठीक है, डस्ट फॉर्म में होते हैं, उसको वहाँ पर डाल दिया जाता है। द फ्लावर इज रीबैग एंड फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप। उसके बाद फ्लावर को पुनः कवर्ड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है पॉलन ग्रेन अदर स्पीसीज की इस पर फॉल डाउन हो जाए, तो उसके प्रिवेंट करने के लिए उसको स्प्रेड करने के बाद पॉलन ग्रेन को फिर कवर्ड कर देते हैं, जहाँ पर फ्रूट को डेवलप करने देते हैं। और इफ द फीमेल पेरेंट्स इज यूनिसेक्सुअल, यदि फीमेल पेरेंट्स केवल है, प्लांट है, यूनिसेक्सुअल है, तो देयर इज नो इमेस्कुलेशन अकर्स। वहाँ पर नेसेसरी नहीं है इमेस्कुलेशन करने की, वहाँ रिमूव एंटर है ही नहीं। इन दिस केस द फीमेल बड इज डायरेक्टली बैग्ड, और इस कंडीशन में फीमेल फ्लावर को डायरेक्टली हम बैग कर देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं। एंड व्हेन स्टिग्मा टर्न रिसेप्टिव, व्हेन इसका स्टिग्मा जब मैच्योर हो जाता है, द सुटेबल पॉलन ग्रेन्स आर डस्टेड ऑन टू इट टू अलाउ द जर्मिनेशन एंड फ्लावर्स आर रिबैग्ड। ठीक है, तो उसके बाद हम वहाँ पर पॉलन ग्रेन डस्टेड उस पर डाल देते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद वहाँ पर डेवलप करने देते हैं, उसको फिर हम कवर कर देते हैं। यू सी द इमेस्कुलेशन प्रोसेस, यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये फोर्थ शेप है, फोर्थ शेप के थ्रू एंथर को रिमूव किया जा रहा है। दैट इज क्लियर। ये एमेस्कुलेशन है। और दूसरा प्रोसेस आपका बैगिंग है। यू सी इन केस ऑफ बैगिंग आल्सो देयर इज द कवर्ड द फ्लावर्स, स्टिग्मा रीजन को कवर्ड कर देते हैं इसमें से एंथर को रिमूव कर कर। दैट इज क्लियर। ये क्लियर हुआ? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। और नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्क्राइब अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।